नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हसल टॉक्स में। आज हम बात करेंगे देश की गर्मी के बारे में। हाय गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हीट वेव्स की शुरुआत हो चुकी है, डिहाइड्रेशन से बेहोशी छा रही है। लोग बाइक पे बैठते हैं तो उछल जाते हैं, लोग गाड़ी में बैठते हैं तो भुन जाते हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन और बाल्टी से बाहर निकाल के लोगों ने सुखाना बंद कर दिया है। वो ऐसे ही गीले कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि 2 सेकंड में तो कपड़े सूख जाते हैं और फिर वापस गीले भी हो जाते हैं। शुक्र है जो हम सब घर में बंद हैं, इसलिए नहीं क्योंकि घर में एसी है, लेकिन बाहर लोग इतना स्टिंग करते हैं दैट यू गेट डिफरेंट पैलेट्स ऑफ स्मेल। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि एसी की गैस, गाड़ी के एसी की गैस, फ्रिज की गैस और इंसान की गैस आर नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गर्मी की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ गई हैं। देश में ना सही, घर में ही सही। टॉप 2 जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। क्या तुम कूलर में पानी भर सकते हो या क्या तुम फ्रिज में बॉटल भर के रख सकते हो। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शनल नहीं, कंपल्शन हो गया है। लोगों ने अपनी शॉपिंग कार्ट और वार्डरोब से डार्क कपड़े हटाना शुरू कर दिया है। वो अब सिर्फ लाइट कपड़े परचेज कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो समरी फील देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लाइट कपड़े भी पसीने से भीगने के बाद डार्क ही हो जाते हैं। गर्मी के कारण गंगा और यमुना का स्तर काफी गिर चुका है, लेकिन हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देश के रिसोर्स मैनेजमेंट का स्तर तो पहले ही गिरा हुआ है। देश में सबसे ज्यादा गर्मी इस वक्त साउथ दिल्ली में महसूस की गई, क्योंकि हर साल की तरह इस वक्त वहाँ के लोग अपनी यूरोपियन वेकेशंस प्लान करके बाहर नहीं निकल पाए। महाराष्ट्र में वेदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दोनों ही जगह भीषण गर्मी और तूफान का आलम है। Oh snap! If you think that was hard, trust me, dealing with climate change is a lot worse. I don't want to give trillions and trillions of dollars. I don't want to lose millions and millions of jobs. I don't want to be put at a disadvantage. I wish you could go to Greenland. Watch these huge chunks of ice just falling into the ocean, raising the sea levels. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज की बात करें तो all graphs are pointing upwards in an unremittingly bleak manner. Temperature is going up, mortality rate is going up, average number of days of high temperatures are going up. Now we have coronavirus in the picture as well, which too, by the way, is a result of interference with the nature. So, with coronavirus adding to our grim weather, we are now in this near apocalyptic scenario. India urgently needs to find ways forward where we balance our commitment to reducing emissions with the constant dilemma of continuous growth. हमें समझना पड़ेगा that India is at the perfect storm center of the climate challenge. क्यों? Because of 2 reasons. See, India is a country that's already hot and we are starting from a relatively low income level. A study conducted by Climate Impact Lab and Tata Center for Development at University of Chicago recently predicted that 1.5 million Indian citizens are projected to die each year from extreme heat due to climate change by 2100. This study is also my this week's reading recommendation for you guys, and you can find it in the description. See, often when climate change is talked about, there's a certain level of abstraction associated with it, or it is talked about on high global levels. तो हमें ये लगता है that it is beyond our capacity to understand, deal with or change. लेकिन आज हम एक ऐसे जंक्शन पे हैं that climate change is affecting something as basic as our life and death. लाइफ एंड डेथ के अलावा क्लाइमेट चेंज का असर हमारी इकोनॉमी को भी सहना पड़ता है। India's economic growth has been stunted by almost 30% due to climate-related impact. There is an ongoing loss of about 62,000 crores on the agriculture sector alone because of the extreme weather events caused by global warming. Now just imagine the future of economy where high temperatures, like even right now we are living in about 45 degrees, this leads to low productivity and a higher cost for managing human resource better. Now add to that the disasters like the pandemic, erratic southern monsoons, floods, cyclones, forest fire, all of which by the way we've seen in the past few months. The cost of rebuilding and the cost of rescuing all this runs into billions of dollars. Can you really imagine growth in such a scenario? चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की जो फाइट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से और क्रिएट कर रहे हैं एक सस्टेनेबल इंडिया, यानी सतत भारत। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। Today, I want you guys to meet a man who's no less than a superhero. His work literally blew me away.
इनका नाम है श्री श्याम सुंदर पालीवाल, who is also known as the father of ecofeminism. He is a social activist and the former सरपंच of पीपलांत्री. पीपलांत्री राजस्थान का एक छोटा सा गांव है. इस गांव में हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाने वाली पीपलांत्री की पंचायत बेटी बचाओ और हरियाली बढ़ाने का काम करती है. Piplanthri has become a case study in sustainability for communities and cities around the world. तो आइए स्वागत करते हैं श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी का. नमस्कार श्याम सुंदर जी, वेलकम टू आवर शो. सर, पीपलांत्री में मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो फिलहाल बहुत गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हमने सुना है कि आपके यहाँ बहुत हरियाली है. तो क्या इससे मौसम में कुछ राहत है? जी नमस्कार, मेरे गांव में आज ही बरसात हुई है. बहुत बढ़िया. और बहुत अच्छा मौसम है. अभी आपको आवाज आ रही होगी, मेरे चारों तरफ मोर बोल रहे हैं. जी सर, हम सुन सकते हैं. और पेड़ों के बीच में हमें रात को ओढ़कर सोना पड़ता है, खुले में जब सोते हैं. एक ऐसा ठंडा माहौल है. क्या बात है. तो सर मतलब इन्वायरमेंट डे करीब है, तो आप क्या कहेंगे, क्या पूरे देश को मतलब पेड़ उगाने चाहिए? आपके हिसाब से क्या मतलब इसमें राय है आपकी? इस ये कोरोना महामारी ने हमें सबको धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है. बिल्कुल. देखिए, अगर हम प्रकृति के साथ नहीं जिएंगे तो बस हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल से जीना पड़ेगा सबको. इसलिए हम सबको आदत डालनी पड़ेगी कि हम प्रकृति की गोद में प्रकृति के साथ जिए. बिल्कुल सर. सर, मैं तो ये कहूँगी, वैसे खैर आपके यहाँ तो इतना अच्छा मौसम है, हमारे यहाँ तो बहुत ही गर्मी है. पर गर्मी में एक ही चीज़ बढ़िया है, जो है आम. तो आम बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल. पर आपके यहाँ तो हमने सुना है कि आम, नीम, शीशम, आंवला के करीब 3 लाख पेड़ है. मतलब विच इज अ बिग नंबर फॉर अ स्मॉल विलेज लाइक योर्स. तो सर, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मेरे गांव में लगभग 3.5 लाख पौधे पेड़ बन रहे हैं, जिनमें नीम, शीशम, बरगद, पीपल, आम, चीकू और सिंदूर, नाग केसर, कल्पवृक्ष, रुद्राक्ष. और इस फल मेरे गांव में मेरे ये एप्पल के पेड़ों पर फल आए हैं, अंजीर के फल आए हैं. बड़ी संख्या में हमारे यहाँ सीताफल है, और बहुत कई तरह के पेड़ जो फलदार हैं वो लगते हैं, और उसको पक्षी खाते हैं. क्या बात है. और पक्षियों के खाने के बाद जो बचता है, नीचे गिरता है, वो हम लोग खाते हैं. ओह नाइस. तो सर, लेकिन ये 3 लाख पेड़ों का क्या राज है? इतने से गांव में आपने इतने पेड़ कैसे उगा लिए? देखिए, जब मैं गांव का 2005 से 2010 तक सरपंच था जी, और मेरा गांव विश्व के सबसे बड़े माइनिंग एरिया, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, उस एरिया के पास लगता है, और वहाँ माइनिंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. अच्छा. तो मैंने यहाँ लोगों के साथ बात करके और प्राकृतिक माहौल बनाने पर चर्चा की, और दुर्भाग्य से उस समय मेरी बेटी, जिसका किरण नाम था, उसकी डिहाइड्रेशन से उसकी डेथ हो गई थी. तो हमने उसकी स्मृति में वृक्षारोपण शुरू किया, और ये लगा कि जब मेरी बेटी के नाम पर वृक्षारोपण कर रहा हूँ और लोग इतने भावुक है, तो क्यों नहीं इस ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाली हर एक बेटी के नाम पर हम पेड़ लगाएं. ओके. तो मेरे गांव में जो भी बेटी जन्म होती है, उसके नाम पर 111 पेड़ लगाते हैं. 111 हर बेटी के नाम पर. और हम बेटी के नाम पर 21,000 रुपए हम लोग जन सहयोग से इकट्ठा करके देते हैं, और 10,000 उसकी बेटी के परिवार से लेकर हम प्रधानमंत्री की सुकन्या योजना के नाम पर खाता खुलवाकर उसी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं. तो और पेड़ कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर हमारी सरकारी जमीनें हैं. अच्छा. और उस पेड़ों को पानी देने के लिए बड़े स्तर पर जल संरक्षण का काम हुआ है. जो पानी 500 फीट से नीचे था, वो आज जमीनी स्तर पर बहता है. तो देखिए, हमारे गांव की बेटी बची. बिल्कुल. हमारे गांव का पानी बचा. हमारे गांव की कॉमन लैंड, सरकारी जमीनें बची. बिल्कुल. और ये सब काम हुआ तो हमारा वन्य जीव वापस आया और वो बचने लगा. और इसके माध्यम से लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार मिला. और हमने ये नारा दिया है कि बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देने का काम हर गांव में किया जाना चाहिए. वाओ, दैट्स अमेजिंग सर. तो मतलब एक्चुअली ये काफी यूनिक इनिशिएटिव है, और इसीलिए मतलब हमने सुना है कि मतलब ऐसे इको फेमिनिज्म का नाम दिया गया है. इको फॉर इकोलॉजी और फेमिनिज्म फॉर सेविंग एंड सेलिब्रेटिंग एक्चुअली गर्ल चाइल्ड. और कहते हैं कि आपको फादर ऑफ इको फेमिनिज्म कहा जाता है. एंड आई मस्ट टेल यू सर, मतलब आपके काम के बारे में सुन के हमें इतनी खुशी हुई. बल्कि आप और पीपलांत्री, आपका गांव सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है. तो मेरे काम को देखकर मेरे प्रदेश में
157 ग्राम पंचायतों में इसी मॉडल पर काम चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं और अभी इस चुनाव में मेरी पत्नी मेरे गांव की सरपंच बनी है। उसकी कांग्रेचुलेशंस जी सर, ये जान के मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, और बल्कि मुझे लगता है कि अगर हम आपका मॉडल अडेप्ट करेंगे तो आदर्श ग्राम बनाने में हम कहीं दूर नहीं हैं। तो जी। आप इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे सर आपको बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्यावरण दिवस पर आइए हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें कि हम बेटी बचाएं, हम पानी बचाएं। जो बरसात का पानी बहकर खारे पानी में मिल रहा है समुद्र में, एक बार बरसात का पानी छोटे नाले से बड़े नाले से छोटी नदी और छोटी नदी से समुद्र में जाकर मिल रहा है, उस पानी को हम धरती माता को पिलाएं, धरती माता को पानीदार बनाएं। आइए हम सरकारी जमीनों को बचाएं, आइए हम प्राकृतिक आधारित रोजगार दिलाएं लोगों को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके इस चैनल के माध्यम से हमें हमारे गांव को याद किया और इतने लोगों से हमारा संपर्क करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स अ वंडरफुल मैसेज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। This proves that you're never too small or insignificant to make a difference. With historic People's Climate March taking place in cities around the world last year, world leaders now debating carbon cap and trade, Al Gore making that movie with Leonardo DiCaprio snuggling polar bears, there is some potential for green economy. In Indian context, companies like Thermowaste Solutions are paving the way forward for a circular economy by providing plastic waste management solutions to corporates, industries, educational institutes, and residential colonies. So, never ever doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Now, moving on to our show's final and fun segment, Read, Listen, Watch. You already know this week's reading recommendation, so time now for Listen. This week, we recommend that you listen to Mohabbat by Kambhari. मैं रगबत का रिश्ता हूँ, सुख दुख में तेरे, मैं काटू सवेरे जो आंखों के नीचे जो काले घेरे सारे अपने बना लूं, मैं तुमको चुरा लूं मैं तुमसे, हम आफत आशिक इस कागज के टुकड़े पे लिखते हैं इश्क. And Claude's Girl by Marika Hackman. Turn off my mind, I beg you. It's buzzing like the devil's bow, pulling a soft virgin string. This week in our Watch section, we are featuring The Frankenstein Chronicles on Netflix and Hannah on Amazon Prime Video. Happy binging! That's all for this week. Thank you for tuning into Hustle Talks. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. Till then, this is Bhagyashree signing off.